Bismillahirrahmanirrahim. Dear teachers and students, Assalamu alaikum. We are currently preparing for the third talent competitions scheduled to be held on 27th and 24th for class 8 and class 5 respectively. And this is my third lecture since we began our preparation for these competitions. In this lecture, I will assess the understanding of the students of future indefinite tense and provide further guidance to improve their understanding. If you are all ready, so let's get started. So future indefinite tense, as you know, we use will and shall, which are modal verbs. And the rule for modal verbs must be known to you that we always use bare infinitive or base form of the word or first form of the word after will or shall in affirmative sentences. And when we make negatives, we put not after will or shall, and for interrogatives, we simply place will or shall before the sentence. So let's start with the first question, which is the multiple choice question. So choose correct answers. 1. She dash her homework tomorrow. जी क्या लगेगा? She completed, will complete. She will complete her homework tomorrow. तो will complete लगेगा. दूसरा सेंटेंस, they dash us next week. They will visit us next week. Will के बाद visit जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है. थर्ड, which sentence is in the future indefinite tense? जी, I am reading a book. No, it's present continuous. I read a book. No, it is present indefinite tense. I will read a book. Yes, this is future indefinite. I have read a book. This is present perfect. But C option is correct. Now question 4. The negative form of he will come is he not will come. No. He won't comes. No. Comes नहीं आएगा. Come verb की base form, bare infinitive. ठीक है. He will not come. Yes. He will not come. ये negative है. ठीक है. Question 5. Which contraction is correct? Contraction बतानी है आपने. ये देखें नीचे. Willn't? No. Won't? Yes. Will not की contraction won't होती है. Will का ILL हम रिमूव कर देते हैं, not का O रिमूव कर देते हैं और अपनी तरफ से O लगाते हैं हम W के बाद, तो won't बन जाता है. WON' won't. तो ये जो B ऑप्शन है ये करेक्ट है. ठीक है. आगे है जी, will you help me? This sentence is जी negative? No. Imperative? No. Interrogative? Yes. Interrogative. Will you help me? क्या आप मेरी मदद करेंगे? 7. The students dash test next Monday. जी. The students take test. No. Take test तो present indefinite हो जाएगा. Took test. No. Past indefinite हो जाएगा. Will take. Yes. ये future indefinite होगा. जी. Which sentence is incorrect? He will arrive soon. ये करेक्ट है, वो जल्द ही पहुंच जाएगा. दे विल नॉट एग्री, वो मुत्तफिक नहीं होंगे, ये भी ठीक है. विल शी सिंग, क्या वो गाएगी? इंट्रोगेटिव, ये भी करेक्ट है. विल शी सिंग्स, ये इनकरेक्ट है. विल शी सिंग होगा, सिंग्स नहीं आता. मैंने पहले भी बताया है कि विल और शैल के साथ बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब लगेगी जो कि बेयर इन्फिनेटिव होता है.
वो लगेगी इसके साथ। 9, आई थिंक इट डैश टुमारो, आई थिंक इट रेन्स टुमारो, आई थिंक इट रेन टुमारो, आई थिंक इट विल रेन टुमारो, आई थिंक इट रेनिंग टुमारो। जी, इट विल रेन टुमारो बड़ा सेफ है, बट आई थिंक इट रेन्स टुमारो भी ठीक है, ठीक है, मगर क्योंकि हम फ्यूचर इंडेफिनिट पे हैं इसलिए आप इट विल रेन ही लगाएं। जी, विच हेल्पिंग वर्ब इज यूज्ड इन फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब आप यूज करते हैं? इज एम आर यूज करते हैं? नहीं, इज एम आर तो प्रेजेंट में होते हैं। हैज हैव नहीं, ये तो परफेक्ट में होते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में। हैड नो, पास्ट परफेक्ट में होता है। विल, ठीक है, तो डी जो है वो ठीक ऑप्शन है। 11, वी डैश आवर ग्रैंड पेरेंट्स नेक्स्ट मंथ, वी विजिटेड आवर ग्रैंड पेरेंट्स नेक्स्ट मंथ, अगले महीने हमने अपने ग्रैंड पेरेंट्स को विजिट किया। या तो गलत हो गया, अभी तो अगला महीना आना है तो विजिट किया तो नहीं हो सकता। विल विजिट, बी ऑप्शन ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, विल दे नॉट अटेंड द मीटिंग, क्या वो मीटिंग में शिरकत नहीं करेंगे? दिस इज पॉजिटिव इंट्रोगेटिव। जी, विल दे नॉट अटेंड द मीटिंग, पॉजिटिव इंट्रोगेटिव नो, नेगेटिव इंट्रोगेटिव यस, ये नेगेटिव भी है, नॉट है, और विल भी स्टार्ट में लगा हुआ है, तो ये इंट्रोगेटिव भी है। तो इंट्रोगेटिव भी है, नेगेटिव भी है, तो बी ऑप्शन करेक्ट है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव है। 13, द ट्रेन डैश एट 8 PM, 8 बजे शाम, द ट्रेन डैश विल लीव, यस, द ट्रेन विल लीव, गाड़ी रवाना होगी एट 8 PM, ठीक है। तो वैसे तो लीव्स भी ठीक है, मगर फ्यूचर इंडेफिनिट है, इसलिए द ट्रेन विल लीव एट 8 PM, ठीक है। वैसे द ट्रेन लेफ्ट एट 8 PM भी करेक्ट सेंटेंस है कि गाड़ी रवाना हुई, मगर हमने तो फ्यूचर इंडेफिनिट बनाना है ना, इसलिए विल लीव आएगा। 14, विच सेंटेंस एक्सप्रेसेस अ प्रॉमिस? जी, प्रॉमिस, वादा करते हैं आप किसी के साथ, इसमें से बताएं कौन सा सेंटेंस है? आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, क्या ये प्रॉमिस है? आई हेल्प्ड यू, मैंने तुम्हारी मदद की, वो तो हो चुकी। प्रॉमिस तो वो होता है जो फ्यूचर में करना हो। आई हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करता हूं, ये तो इस वक्त आप कर रहे हैं, इसका मतलब कहीं आपने प्रॉमिस पास्ट में किया था, ठीक है। आई एम हेल्पिंग यू, मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूं, नहीं, ये सबसे पहला जो ए है, आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, ये आप वादा कर रहे हैं। वादा वही होता है जो मुस्तकबिल के लिए होता है, इसलिए आई विल हेल्प यू जो है ये करेक्ट है प्रॉमिस के लिए। यू डैश आंसर टुमारो, जी, यू नो द आंसर टुमारो, टुमारो आने वाला है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट और फ्यूचर इकट्ठे कैसे हो सकते हैं? टुमारो तो फ्यूचर में आना है, इसलिए नो तो नहीं हो सकता। और न्यू क्या है? नहीं, न्यू जो है वो पास्ट इंडेफिनिट है, वो भी टुमारो के लिए नहीं आ सकता। विल नो, यस, यू विल नो द आंसर टुमारो, तुम्हें कल जवाब का पता चल जाएगा। 16, विच सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट? ही विल गोज, इनकरेक्ट, गलत है, क्योंकि मैंने बताया विल के बाद बेस फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, बेयर इन्फिनेटिव, ठीक है, वो लगेगा, तो ही विल गो आएगा। ही विल वेंट बिल्कुल ही गलत है, ही विल गो ठीक है, सी ऑप्शन ठीक है, ही विल गोइंग भी गलत है। दे डैश द प्रोजेक्ट बाय देमसेल्व्स, दे विल फिनिश द प्रोजेक्ट बाय देमसेल्व्स, ये ठीक है, फिनिशेस, फिनिश्ड, फिनिशिंग नहीं, विल फिनिश, क्योंकि फ्यूचर इंडेफिनिट है। 18, विल नॉट ही कम, क्या वो नहीं आएगा? द मोर कॉमन फॉर्म इज, देखें, विल नॉट ही कम, ये कहता है ये एक सेंटेंस है, विल नॉट ही कम, ये तो इनकरेक्ट है, इस तरह तो लिखा नहीं जाता।
तो कहता है वो कैसे लिखा जाएगा? ही वॉन्ट कम नहीं, ही वॉन्ट कम तो अफर्मेटिव है, क्वेश्चन मार्क आगे लगा हुआ है, तो ये ऐसे नहीं होगा। ही वॉन्ट कम सेंटेंस करेक्ट है कि वो नहीं आएगा, मगर हमने तो क्वेश्चन बनाना है और नेगेटिव भी बनाना है, इंट्रोगेटिव भी बनाना है, ठीक है ना, क्योंकि विल शुरू में लगा है और नॉट भी है। वॉन्ट ही कम, जी अगर तो कंट्रैक्शन यूज करेंगे तो फिर ये करेक्ट है। वॉन्ट ही कम, क्या वो नहीं आएगा? ठीक है, ये विल नॉट को फिर आपको वॉन्ट बनाना पड़ेगा, वॉन्ट ही कम, ठीक है, विल नॉट नहीं आएगा। अगर आपने विल नॉट लगाना है तो फिर आप लगाएंगे विल ही नॉट कम, विल के बाद फिर ही आएगा, बाद में नॉट आएगा। और अगर आपने कंट्रैक्शन यूज करनी है तो फिर आएगा वॉन्ट ही कम, तो ये बी जो है करेक्ट है। तो ये विल ही नॉट कम, कम्स, ये तो कम्स वैसे ही गलत है, ठीक है, तो वो बी ऑप्शन ठीक है, वॉन्ट ही कम। विच सेंटेंस शोज प्रिडिक्शन, जी प्रिडिक्शन, पेशीन गोई, इसमें से कौन सा सेंटेंस पेशीन गोई कर रहा है, यानी मुस्तकबिल में आने वाले किसी वाक्य का बता रहा है? 1, आई विल प्रोबेबली विन, गालबन मैं जीत जाऊंगा, ये प्रिडिक्शन है ना, पेशीन गोई है कि नहीं है? ओपन द डोर, ये तो इंपेरेटिव सेंटेंस है, ये तो ऑर्डर, ये तो प्रिडिक्शन को शो नहीं करता। ओपन द डोर तो ऑर्डर है कि दरवाजा खोलो, ठीक है जी। आगे सिट डाउन, ये भी ऑर्डर है, बैठ जाओ नीचे। बी क्वाइट, खामोश हो जाओ, ये तो तीनों ऑर्डर हैं, ओपन द डोर, सिट डाउन, बी क्वाइट। तो प्रिडिक्शन जो है पेशीन गोई, फोरकास्ट, मुस्तकबिल की, कौन सा फिक्रा कर रहा है? आई विल प्रोबेबली, गालिबन, विन, शायद मैं जीत जाऊंगा, यानी उसको अंदाजा है कि वो शायद जीत जाएगा, वो एक पेशीन गोई कर रहा है कि मेरी इतनी तैयारी जरूर है, मुझे लगता है कि मैं जीत जाऊंगा, तो ये प्रेडिक्शन है, ए जो है वो करेक्ट है। 20, फ्यूचर इंडेफिनेट यूजेस, जी ए V1 यानी वर्ब 1 बेस फॉर्म, यस ये करेक्ट है। V2 नहीं, सेकंड फॉर्म नहीं, V3 नहीं, ING नहीं, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स, जी फिल इन द ब्लैंक्स, यूज द करेक्ट फ्यूचर इंडेफिनेट फॉर्म। जी आई बाय अ न्यू बाइसिकल नेक्स्ट मंथ, जी आई विल बाय। अच्छा जी एक बात सुन लें, विल और शैल, जो ट्रेडिशनल ग्रामर है ना, जो पुराने जमाने के ग्रामेरियन है, वो अभी भी ये कहते हैं कि आई और वी के साथ शैल लगाएं और बाकियों के साथ विल लगाएं, मगर ये अब जो रूल है ये फेंट होता जा रहा है। अब वो कहते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, आप सब के साथ विल लगाएं, ठीक है। आई और वी के साथ अगर आपने शैल लगाना है तो लगा दें, मगर आई और वी के साथ जब आप विल लगाएंगे तो वो उतना ही दुरुस्त होगा जितना आप आई और वी के साथ शैल लगाएंगे, ठीक है। इसलिए ये बात आपके जहन में होनी चाहिए। हाँ, जो शैल है वो ऑफिशियल और फॉर्मल लैंग्वेज में लिखा जाता है। आप किसी के साथ कोई एग्रीमेंट करते हैं, मुआहदा करते हैं, उसके अंदर अगर फ्यूचर टेंस आएगा तो विल नहीं लिखा जाएगा, उसके अंदर फिर शैल लिखा जाएगा। अगर कोई कानून बनता है, कोई लॉ बनता है, उस लॉ के अंदर भी विल नहीं लिखा जाएगा, उसके अंदर भी शैल लिखा जाएगा। ये बात आपने याद रखनी है कि जो ऑफिशियल लैंग्वेज है उसके अंदर विल की जगह पे शैल लिखा जाता है। वो किसी के साथ एग्रीमेंट करना हो, मुआहदा करना हो, या वो आपने कोई कानून बनाना हो और कानून में जो लैंग्वेज लिखनी है उसमें वर्ड शैल आएगा। तो ये बात आपने याद रखनी, अदरवाइज विल और शैल में अब कोई फर्क नहीं रहा। यस, कहां पे शैल जरूरी हो जाता है वो आगे आएगा, मैं बताऊंगा आपको। जी आई विल बाय अ न्यू बाइसिकल नेक्स्ट मंथ, मैं अगले महीने एक नया बाइक, तो यहां पे विल आएगा या शैल आएगा, कोई फर्क नहीं। शी विल नॉट अटेंड द फंक्शन, यस शी विल नॉट अटेंड, यहां पे विल आएगा। आगे डैश दे डैश प्ले टुमारो, क्वेश्चन मार्क है, तो जाहिर है अगर क्वेश्चन मार्क है और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है तो स्टार्ट में क्या आएगा? विल। विल दे
प्ले टुमारो, क्या वो कल खेलेंगे? तो प्ले तो आना ही आना है, क्योंकि विल के साथ तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आनी है। वी डैश विजिट लाहौर ड्यूरिंग द हॉलीडेज। जी वी विल या वी शैल एक ही बात है। विजिट लाहौर ड्यूरिंग द हॉलीडेज, ठीक है जी। ही डैश नॉट फॉरगेट योर काइंडनेस। ही विल नॉट फॉरगेट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, वो आपकी मेहरबानी को नहीं भूलेगा। डैश यू डैश हेल्प मी, अब डैश स्टार्ट में आ गया है, एंड पे क्वेश्चन मार्क है, इसका मतलब इंट्रोगेटिव है। अगर इंट्रोगेटिव फ्यूचर इंडेफिनिट में है तो स्टार्ट में क्या लगेगा? विल। तो विल यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद करेंगे? आगे 7, द बेबी डैश स्लीप सून। द बेबी विल स्लीप सून, बच्चा जल्द सो जाएगा। दे डैश नॉट पार्टिसिपेट इन द रेस। दे विल नॉट पार्टिसिपेट इन द रेस, वो रेस में शिरकत नहीं करेंगे। डैश शी डैश जॉइन अस लेटर, अब क्वेश्चन मार्क है, इंट्रोगेटिव है, दरमियान में स्टार्ट में भी डैश है, तो क्या आएगा? विल। विल शी जॉइन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वही आएगी। विल शी जॉइन अस लेटर। आई थिंक पाकिस्तान डैश द मैच। जी डैश विन द मैच, विल विन द मैच। आई थिंक पाकिस्तान विल विन द मैच। 11, द गेस्ट डैश अराइव एट नून। जी द गेस्ट विल अराइव एट नून, ठीक है। अराइव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो वही लगेगी। वी डैश नॉट वेस्ट आवर टाइम, देखें, वी विल नॉट वेस्ट आवर टाइम, ठीक है, या वी शैल नॉट वेस्ट आवर टाइम, एक ही बात है। डैश अहमद डैश स्पीक एट द सेमिनार। जी तो क्वेश्चन मार्क एंड पे इंट्रोगेटिव है, तो स्टार्ट में क्या आएगा? विल। विल अहमद स्पीक एट द सेमिनार, क्या अहमद सेमिनार पे तकरीर करेगा? द फार्मर डैश हार्वेस्ट द क्रॉप नेक्स्ट वीक। द फार्मर विल हार्वेस्ट, किसान कटाई करेगा, द क्रॉप फसल की, नेक्स्ट वीक अगले हफ्ते। शी डैश नॉट एग्री विद योर प्रपोजल। शी विल नॉट एग्री विद योर प्रपोजल, वो आपकी तजवीज के साथ इत्तेफाक नहीं करेगी, ठीक है। पार्ट सी आ गया जी, चेंज इनटू नेगेटिव। इन सब के नेगेटिव बनाने हैं। आई विल कॉल यू टुमारो, जी आई विल नॉट कॉल यू टुमारो। मैं सिंपली बता देता हूं, जहां भी विल आया उसके बाद नॉट लगाते जाएं, सब इंटरेक्टिव बन जाएंगे। मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप देखते जाएं और विल के बाद नॉट लगाते जाएं, विल के बाद नॉट लगाते हैं। जहां भी विल आ गया उसके बाद नॉट लगाना है, ठीक है जी। ये देख लें, जहां भी विल आया उसके बाद नॉट लगा दें, ये सब नेगेटिव बन गए। आगे आ गई चेंज इनटू इंट्रोगेटिव। जी मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये सेंटेंस है, इसमें से आप विल को उठा के स्टार्ट पे रख दें और एंड पे क्वेश्चन मार्क लगा दें। फर्स्ट है शी विल कम टुमारो, विल यहां पे रिमूव करें, इसको स्टार्ट में रखें, शी से पहले रख दें। तो विल शी कम टुमारो, टुमारो के बाद फुल स्टॉप रिमूव करके क्वेश्चन मार्क लगा दें। बस दो तब्दीलियां करनी है आपने, उसी सेंटेंस में से विल को पिक करना है और यू हैव टू प्लेस इट एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। तो स्टार्ट में लगा देना है और एंड पे क्वेश्चन मार्क लगा देना है और ये इंट्रोगेटिव बन जाएगा। वेरी सिंपल, यही रूल है। तो सब के साथ यही करें आप। अगला है, उसमें से भी विल उठा के स्टार्ट में रखें, उससे अगला विल उठाएं, फिर 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 विल उठाएं, नाइन्थ, फिर विल उठाएं, फिर विल उठाएं, स्टार्ट में रखें। सबका यही करना है और एंड पे क्वेश्चन मार्क करने। ठीक हो गया? अच्छा, तो नेक्स्ट है पार्ट ई, चेंज इनटू नेगेटिव इंट्रोगेटिव। जी ये सेंटेंस नेगेटिव भी बनाना है, इंट्रोगेटिव भी बनाना है। जी आपने क्या करना है, ये देखें, बड़ा सिंपल है। विल को उठाएं और स्टार्ट में रख दें तो इंट्रोगेटिव बन गया और एंड पे क्वेश्चन मार्क लगा दें, ठीक है। और जहां से विल उठाया था उस जगह पे नॉट रख दें,
कितना सिंपल है। विल को आप वहां से निकालें, रिमूव करें, स्टार्ट में रख दें, एंड पे क्वेश्चन मार्क लगा दें, और जहां से विल को उठाया था उस जगह पे नॉट रख दें। अब पहला सेंटेंस हम देखते हैं, ही विल अटेंड द मीटिंग। अब विल ही अटेंड द मीटिंग तो हो गया इंट्रोगेटिव। अब अगर हमने साथ नेगेटिव भी बनाना है तो जहां से विल उठाया था, विल ही नॉट अटेंड द मीटिंग। ठीक हो गया। तो ये आपका नेगेटिव इंट्रोगेटिव बन जाएगा। सबके साथ यही करें, विल रिमूव करें, स्टार्ट में रखें, विल की जगह पे नॉट रखें, एंड पे क्वेश्चन मार्क। 3 तब्दीलियां। पहली, विल उठाएं, स्टार्ट में रखें, विल की जगह पे नॉट रखें, एंड पे क्वेश्चन मार्क। दैट्स ऑल। इन सब के साथ आपने यही करना है। ठीक है जी, सब ऐसे ही बनाएंगे। आगे है जी पार्ट एफ, एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन। ये सेंटेंस जो नीचे हैं इनमें आपने, ये इनकरेक्ट हैं, इनमें एरर जो है उसको डिटेक्ट करना है, फाइंड आउट करना है, और फिर आपने उसको करेक्ट भी करना है। ठीक है जी। तो करेक्ट द एरर्स जी। पहला सेंटेंस है, ही विल गोज टू स्कूल टुमारो। विल के बाद क्या आएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो गोज क्या है? फर्स्ट फॉर्म नहीं है। मैं इसको हमेशा चौथी फॉर्म कहता हूं। तो कैसे? गो पहली है, वेंट दूसरी है, गान तीसरी है, गोज चौथी है, गोइंग पांचवी है। बच्चों को आसानी से समझाने के लिए वर्ब को मैं 5 फॉर्म्स में वैसे ही डिवाइड कर देता हूं। ठीक है। तो ये गोज जो है ये फर्स्ट फॉर्म नहीं है, ये फोर्थ फॉर्म है। SJIES लग गया तो उसको मैं फोर्थ फॉर्म कह देता हूं। ठीक है। तो इसलिए यहां पे इसमें क्या आपने डिटेक्ट किया? एरर गोज वाला। तो इसको करेक्ट क्या करेंगे? गो कर देंगे। तो ही विल गो। आगे आ गई जी, विल शी सिंग्स जी। सिंग्स क्या है? ये चौथी फॉर्म है, आपने पहली फॉर्म बनानी है सिंग। दे विल नॉट कम्स, कम्स चौथी फॉर्म है, पहली लगा दें कम। आई विल बाट ए कार, बाट दूसरी या तीसरी फॉर्म है, बाट दूसरी भी है तीसरी भी है, तो आपने कौन सी लगानी है? पहली। बाई लगा दें, आई विल बाय ए कार। वी विल फिनिशिंग आवर वर्क, फिनिशिंग कौन सी फॉर्म है? पांचवी, आपने कौन सी लगानी है? पहली, फिनिश लगा दें। विल ही राइट्स अ लेटर, राइट्स कौन सी फॉर्म है? चौथी, आपने पहली लगानी है, राइट। शी विल नॉट अटेंड्स क्लास, अटेंड्स चौथी फॉर्म है, आपने पहली लगानी है, अटेंड। द बॉयज विल प्लेड क्रिकेट, प्लेड दूसरी और तीसरी फॉर्म है, आपने पहली लगानी है, प्ले। यू विल रीचिंग देयर सून, रीचिंग कौन सी फॉर्म है? पांचवी, आपने पहली लगानी है, रीच। यू विल रीच देयर सून। विल दे अराइव्ड ऑन टाइम, अराइव्ड दूसरी और तीसरी फॉर्म है, आपने पहले लगानी है, अराइव। विल दे अराइव ऑन टाइम, क्या वो वक्त पर पहुंचेंगे? तो ये आपने करेक्शन कर ली। नेक्स्ट पार्ट है सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन। सेंटेंस को आपने ट्रांसफॉर्म करना है, तब्दील करना है जिस तरीके से वो कहे। अगर वो कहते हैं इसको नेगेटिव बनाएं तो नेगेटिव बनाएं, पॉजिटिव बनाएं तो पॉजिटिव बनाएं, इंट्रोगेटिव बनाएं तो इंट्रोगेटिव बनाएं। ठीक है जी। फॉलो द इंस्ट्रक्शंस, इंस्ट्रक्शंस आपने फॉलो करनी है। मेक एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस फ्रॉम, इसका इंट्रोगेटिव बनाएं। शी विल कंप्लीट द टास्क जी। इंट्रोगेटिव कैसे बनाते हैं? विल को उठा के स्टार्ट में रख दें और एंड पे क्वेश्चन मार्क लगा दें, बस। विल शी कंप्लीट द टास्क। मेक अ नेगेटिव सेंटेंस फ्रॉम, इससे दे विल हेल्प अस, इसका नेगेटिव बनाएं। कैसे बनाते हैं? विल के बाद नॉट लगा देते हैं, दे विल नॉट हेल्प अस। मेक ए नेगेटिव इंट्रोगेटिव, नेगेटिव भी बनाना है, इंट्रोगेटिव भी बनाना है। ही विल कम जी, आपने नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, पहले इंट्रोगेटिव बनाए, विल उठाएं, स्टार्ट में लगाएं। ठीक है। विल की जगह पे नॉट लगाएं, एंड पे क्वेश्चन मार्क लगाएं, तो विल ही नॉट कम, नेगेटिव इंट्रोगेटिव बन गया। चेंज इनटू ए पॉजिटिव सेंटेंस, इसका पॉजिटिव बनाएं। दे विल नॉट पार्टिसिपेट, वो शिरकत नहीं करेंगे। नॉट रिमूव कर दें, बस पॉजिटिव बन गया। दे विल पार्टिसिपेट, वो शिरकत करेंगे। चेंज इनटू ए नेगेटिव सेंटेंस जी। विल शी अटेंड द मीटिंग, इसका आपने नेगेटिव बनाना है। ठीक है। क्या करेंगे? विल को उठाएंगे, शी के बाद ले आएंगे,
शी विल, उसके बाद नॉट लगा देंगे, शी विल नॉट अटेंड द मीटिंग, ठीक है, तो ये नेगेटिव बन जाएगा। चेंज इनटू एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसका इंट्रोगेटिव बनाना है, वी विल विजिट इस्लामाबाद, इंट्रोगेटिव सिंपल, विल उठाएं स्टार्ट में रख दें, बस एंड पे क्वेश्चन मार्क। चेंज इनटू अ नेगेटिव इंट्रोगेटिव, जी नेगेटिव इंट्रोगेटिव, आई विल एग्री, आई विल एग्री, जी नेगेटिव भी बनाना है, इंट्रोगेटिव भी बनाना है। विल उठाएं स्टार्ट में रखें, विल की जगह पे नॉट रखें, एंड पे क्वेश्चन मार्क, विल आई नॉट एग्री। चेंज इनटू अ पॉजिटिव सेंटेंस, जी इसका पॉजिटिव बनाना है, वॉन्ट दे हेल्प यू, क्या वो तुम्हारी मदद नहीं करेंगे, तो इसका आपने पॉजिटिव बनाना है, दे विल हेल्प यू, वो आपकी मदद करेंगे। चेंज इनटू ए नेगेटिव सेंटेंस, द स्टूडेंट्स विल लर्न द लेसन, नेगेटिव तो सिंपल है ना, विल के बाद नॉट लगा दें बस, विल नॉट लर्न द लेसन। चेंज इनटू एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, द ट्रेन विल लीव एट नाइट, गाड़ी रात को रवाना होगी, जी इसका इंट्रोगेटिव, तो क्या इंट्रोगेटिव, सिंपल, विल उठाएं स्टार्ट में रख दें, एंड पे क्वेश्चन मार्क, विल द ट्रेन लीव एट नाइट, ठीक है जी। नेक्स्ट है पार्ट एच, उर्दू टू इंग्लिश, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश यूजिंग फ्यूचर इंडेफिनिट, मैं कल स्कूल जाऊंगा, जी आई विल गो टू स्कूल टुमारो या आई शैल गो टू स्कूल टुमारो, कोई फर्क नहीं, वो हमारी मदद करेगी, शी विल हेल्प अस। क्या तुम मेरा इंतजार करोगे, तुम मेरा इंतजार करोगे, यू विल वेट फॉर मी, क्या तुम मेरा इंतजार करोगे, तो विल उठा के स्टार्ट में रख दे, विल यू वेट फॉर मी। हम अगले हफ्ते लाहौर जाएंगे, विल गो टू लाहौर नेक्स्ट वीक, वी विल गो या वी शैल गो एक ही बात, टू लाहौर नेक्स्ट वीक। वो इम्तिहान पास नहीं करेगा, वो इम्तिहान पास करेगा, ही विल पास द एग्जामिनेशन, तो पास नहीं करेगा, ही विल नॉट, विल के बाद नॉट लगा दें, ही विल नॉट पास द एग्जामिनेशन। क्या वो वक्त पर पहुंचेंगे, विल दे अराइव ऑन टाइम, दे विल अराइव ऑन टाइम, ये तो हो गया पॉजिटिव। तो इसका इंट्रोगेटिव, क्या वो वक्त पर पहुंचेंगे, विल स्टार्ट में लगा दें। मैं तुम्हें खत लिखूंगा, आई शैल राइट अ लेटर टू यू या आई विल राइट अ लेटर टू यू, एक ही बात। क्या वो मीटिंग में शिरकत नहीं करेगा, अच्छा वो मीटिंग में शिरकत करेगा, पहले ये बना दें, ही विल पार्टिसिपेट इन द मीटिंग, ही विल पार्टिसिपेट इन द मीटिंग। तो अब इसका इंट्रोगेटिव करें, बनाएं, क्या वो मीटिंग, अच्छा ये नेगेटिव इंट्रोगेटिव है, ही विल पार्टिसिपेट इन द मीटिंग, अब नेगेटिव बनाएं, ही विल नॉट पार्टिसिपेट इन द मीटिंग, अब इंट्रोगेटिव बनाएं, विल उठा के स्टार्ट में रख दें, विल ही नॉट पार्टिसिपेट इन द मीटिंग, सिंपल, एंड पे क्वेश्चन मार्क। बच्चे पार्क में खेलेंगे, द चिल्ड्रन विल प्ले इन द पार्क, हम अपना काम मुकम्मल करेंगे, वी विल या वी शैल फिनिश आवर वर्क। जी आगे है जी इंग्लिश टू उर्दू ट्रांसलेशन, ये कुछ इंग्लिश के सेंटेंस हैं, इनको उर्दू में आप ट्रांसलेट करेंगे। आई विल विजिट माई फ्रेंड टुमारो, मैं अपने दोस्त से कल मिलने जाऊंगा, विल यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद करेंगे, शी विल नॉट अटेंड द क्लास, वो क्लास में शिरकत नहीं करेगी, वॉन्ट दे कम विद अस, क्या वो हमारे साथ नहीं आएंगे, वी विल कंप्लीट द प्रोजेक्ट नेक्स्ट वीक, हम अगले हफ्ते मंसूबा मुकम्मल कर लेंगे, ठीक है जी। आगे है जी एडवांस्ड चैलेंज पार्ट जे, रीराइट द फॉलोइंग इन ऑल 4 फॉर्म्स, ये एक सेंटेंस दिया हुआ होगा, उसको आपने अगर तो पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी बनाना है, इंट्रोगेटिव बनाना है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव भी बनाना है, ठीक है। अब पहला सेंटेंस है, इसको मैं बनाता हूं, शी विल टीच अस, ये तो पॉजिटिव तो पहले ही, उसने कहा पॉजिटिव बनाएं, नेगेटिव बनाएं, इंट्रोगेटिव बनाएं, नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाएं, तो पॉजिटिव तो पहले ही है, अब नेगेटिव बनाते हैं। नेगेटिव के लिए क्या करते हैं आप सिर्फ विल के बाद नॉट लगा देते हैं, ठीक है, तो आप नॉट लगा दें, नेगेटिव बन गया, शी विल नॉट टीच इंग्लिश। अब इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिवली क्या करते हैं,
विल उठा के स्टार्ट में रख देते हैं, रख दें और एंड पे क्वेश्चन मार्क लगा दें। तो विल शी टीच इंग्लिश, ये इंट्रोगेटिव बन गया। अब नेगेटिव इंट्रोगेटिव, अब जो वो मैंने आपको बताया था, नेगेटिव इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे, शी विल टीच इंग्लिश। पहले इंट्रोगेटिव बना लें या पहले नेगेटिव बना लें, एक ही बात है। विल को उठा के स्टार्ट में रखें, विल की जगह पे नॉट रखें, एंड पे क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो ये आ गया विल शी नॉट टीच इंग्लिश, ये नेगेटिव इंट्रोगेटिव। यही तरीका है, आपने इसी तरीके से नेगेटिव बनाना है, इंट्रोगेटिव बनाना है और नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाना है, ठीक है। तो ये जितने भी सेंटेंसेस हैं ये सारे बाकी आप इस तरीके से बना लें। आखिरी फिर मैं बना देता हूं एक, चले। आई विल सपोर्ट यू, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, आई विल सपोर्ट यू। अब इसका नेगेटिव बनाए, आई विल नॉट सपोर्ट यू, मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। क्या मैं तुम्हारी मदद करूंगा, विल आई सपोर्ट यू, विल स्टार्ट में लगा दें, एंड पे क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो अब नेगेटिव इंट्रोगेटिव बना दें, विल आई नॉट सपोर्ट यू। तो ये चारों किस्म के फिक्रे बन गए। आ गया जी बोनस ग्रामर मास्टर चैलेंज, आइडेंटिफाई वेदर ईच सेंटेंस एक्सप्रेसेस। ये जरा मुश्किल क्वेश्चन है, इसमें आपकी पूरी अटेंशन और आपकी एक्सपर्टीज और एबिलिटी का पता चलेगा कि आपको कितना समझ आया है। ये आगे कुछ 10 सेंटेंसेस दिए हुए हैं फ्यूचर इंडेफिनिट के, उनमें से आपने बताना है क्या वो सेंटेंस प्रिडिक्शन को जाहिर करता है, प्रॉमिस, प्रिडिक्शन का मतलब पेशीन गोई, प्रॉमिस को जाहिर करता है, वादे को, ऑफर या पेशकश कोई कर रहे हैं आप उसको जाहिर करता है, डिसीजन किसी फैसले को जाहिर करता है, वार्निंग किसी तंबीह को जाहिर करता है, रिक्वेस्ट किसी रिक्वेस्ट को, गुजारिश को, इल्तिजा को जाहिर करता है, इनविटेशन किसी दावत को के बारे में बताता है, अजम्पशन कोई मफरूजा है या फ्यूचर फैक्ट या कोई मुस्तकबिल की हकीकत है, आर डिटर्मिनेशन या पुख्ता इरादा है, मुसम्मम इरादा है। ये आपने बताना है कि वो सेंटेंस जो है वो क्या शो करता है, ठीक है जी। आई विल ऑलवेज स्टैंड बाई यू, मैं हमेशा आपका साथ दूंगा, स्टैंड बाई साथ देना। आई विल ऑलवेज स्टैंड बाई यू, क्या क्या है ये, इन 10 में से जो ऊपर दिए गए मैंने लिख दिया आगे, ये प्रॉमिस है, वादा कर रहा है ना कि मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। तो ये किसी दोस्त के साथ वादा कर रहा है कि मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा, तो ये प्रॉमिस है, ठीक है। इट विल रेन टुनाइट, जी ये को पक्का तो नहीं है आपको कि आपने तो नहीं बारिश बरसानी, अल्लाह मियां ने बरसानी है। तो ये आप प्रिडिक्शन कर सकते हैं, पेशीन गोई कर सकते हैं, पेश गोई कर सकते हैं कि आज रात बारिश होगी, ये आपका ख्याल है, तो इसलिए ये प्रिडिक्शन है, पेश गोई है कि इट विल रेन टुनाइट, आज रात बारिश होगी। अच्छा जी, विल यू ओपन द डोर, विल यू ओपन द विंडो, क्या आप खिड़की खोल लेंगे। अब देखें, ये आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना, किसी को गुजारिश कर रहे हैं ना, क्या यार आप खिड़की खोल देंगे, गर्मी लग रही है मुझे, जरा हवा आने दें, क्या आप खिड़की खोल, तो ये गुजारिश है, तो ये रिक्वेस्ट को शो करता है। वी विल नेवर सरेंडर, हम कभी हथियार नहीं डालेंगे, ये डिटर्मिनेशन है, मुसम्मम इरादे को शो करता है, ये डिटर्मिनेशन है। वी विल नेवर सरेंडर, सॉरी, यू विल रिग्रेट दिस मिस्टेक, तुम ये गलती जो कर रहे हो इस पर पछताओगे, यू विल रिग्रेट, तुम पछताओगे, दिस मिस्टेक, ये गलती जो तुम कर रहे हो इस गलती पर, ठीक है। तो ये आप उसको तंबीह कर रहे हैं, ये वार्निंग को शो करता है, ठीक। आई विल कैरी योर बैग, कोई बूढ़ी खातून है, वजनी बैग है उसका, दोनों आप बस से उतरे हैं, आप उसकी हेल्प करना चाहते हैं, आप उसको कहते हैं अम्मा जी आई विल कैरी योर बैग, ये एक ऑफर है, पेशकश है, आप अपनी तरफ से पेशकश कर रहे हैं, ऑफर कर रहे हैं उसकी हेल्प करने के लिए कि तुम्हारा बैग मैं उठा लेता हूं, ठीक है। आई विल कैरी योर बैग। आगे है जी, दे विल अराइव एट 8 AM, ये तो एक फ्यूचर फैक्ट है कि वो 8 बजे पहुंचेंगे, ठीक है, सुबह AM, वो सुबह 8 बजे पहुंचेंगे, ये क्या है, ये तो एक मुस्तकबिल की हकीकत है कि ये 8 बजे कल उन्होंने पहुंचना है, ठीक है। आगे विल यू जॉइन अस फॉर डिनर,
क्या आप आज रात का खाना आप हमारे साथ खाएंगे? तो क्या कर रहे हैं आप? इनविटेशन, दावत दे रहे हैं ना, तो ये इनविटेशन को जाहिर करता है। आई थिंक शी विल पास, मेरा ख्याल है कि वो पास हो जाएगी। अब ये क्या है? ये आपकी अजम्पशन भी है, मफरूजा भी है, और एक प्रिडिक्शन भी है। ठीक है ना, आपका ख्याल है कि वो पास हो जाएगी, तो यू आर नॉट श्योर, ये आप एक प्रिडिक्शन कर रहे हैं उसकी काबिलियत को देखते हुए कि तकरीबन इतनी है कि ये पास हो सकती है, तो उस बेस पे आप बता रहे हैं। ठीक है, तो ये प्रिडिक्शन है या आपकी अजम्पशन है। आई विल बाई दिस शर्ट, आई विल बाई दिस शर्ट, मैं ये शर्ट खरीदूंगा। आप बच्चे हैं, माँ के साथ जाते हैं स्टोर के ऊपर, शर्ट आपको पसंद आ गई है, आप माँ को पकड़ खड़े, नहीं नहीं ये तो मैंने लेनी ही लेनी, ये मेरा फैसला है, आई विल बाई दिस शर्ट, मैं ये शर्ट जरूर खरीदूंगा। याद रखना, जो विल होता है ना, इसके बहुत सारे मतलब होते हैं, वो आगे जाके मैं आपको बताऊंगा। ये सारे जितने भी आपने यूज देखे हैं, ये विल की डिफरेंट शेड्स हैं उसके मीनिंग के। ठीक है, आर्डर भी होता है विल, वो ऐसे होता है जब आप किसी को कहते हैं यू विल डू दिस वर्क, तुम ये काम करोगे, ये मेरा आर्डर है, यू विल डू दिस वर्क, तो ये विल जो है ये आर्डर भी होता है। ठीक है, चलें जी, ये अब आगे आंसर की मैंने दी है इनकी सब की, जितने भी ये थे, मगर एंड पे एक बड़ा मुश्किल टेस्ट मैंने रखा है आप लोगों का, देखते हैं, वो शायद मैं भी पूरी तरह पास ना करूं, मगर हम देखते हैं कि क्या। अच्छा सॉरी, ये एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस रहते हैं जी। ये पार्ट के, जे हो गया था, के रह गया, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस क्वेश्चंस। ठीक है जी, चेंज इनटू पैसिव वॉइस, द प्रिंसिपल विल अनाउंस द रिजल्ट टुमारो, बनाए पैसिव वॉइस। द रिजल्ट, क्या द रिजल्ट जो है ये सब्जेक्ट बन जाएगा, और द प्रिंसिपल क्या है, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। और फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस बनाने के लिए आप क्या करते हैं, बी को ऐड करते हैं विल के बाद, विल बी या शेल बी करते हैं। और हमेशा पैसिव वॉइस के लिए वो तो आपको पता है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी, अनाउंस का अनाउंस हो जाएगा। ठीक है, और बाई तो आपने लगाना ही होता है, जिसको आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं, द प्रिंसिपल, उस ऑब्जेक्ट से पहले बाई तो आपने लगाना ही होता है। ठीक है, तो द रिजल्ट विल बी अपनी तरफ से लगाना है, द रिजल्ट विल बी अनाउंस्ड बाय द प्रिंसिपल टुमारो। ठीक है, द कमेटी विल अप्रूव द प्रपोजल विल बी अप्रूव्ड बाय द कमेटी, the government will launch a new scheme will be launched by the government, the students will complete the project will be completed by the students, the teacher will check the notebooks will be checked by the teacher। अब चेंज इनटू एक्टिव वॉइस, ये पैसिव वॉइस दिए हुए हैं, आपने इनका एक्टिव वॉइस बनाना है। द प्राइज विल बी अवार्डेड बाय द चीफ गेस्ट, the chief guest will award the prize, the road will be repaired by the workers will repair the road, the lesson will be explained by the teacher will explain the letter, the match will be won by our team will win the match, the letter will be delivered by the postman will deliver the letter। तो ये एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस हो गए थे, ये इनका आगे मैंने रिजल्ट की है, आंसर जो है आगे जी। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इसमें जो हैं वो भी देख ले थोड़े से। ही सेड आई विल हेल्प यू जी, ही सेड आप कॉमा रिमूव करते हैं, इन्वर्टेड कॉमास भी रिमूव कर देते हैं। ही सेड दैट, जो फर्स्ट पर्सन होता है उसको थर्ड पर्सन से आप रिप्लेस करते हैं, आई की जगह पे ही आ जाएगा। ही सेड दैट ही
विल का क्या बन जाएगा, सेकंड फॉर्म, क्योंकि पीछे सेड, अगर इसमें फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस जो है उसमें सेकंड फॉर्म है तो आगे आपको सेकंड फॉर्म लगानी पड़ती है, तो विल की सेकंड फॉर्म वुड होती है। ही सेड दैट ही वुड हेल्प यू, यू क्या होता है, यू सेकंड पर्सन है तो इसको किस में तब्दील करते हैं, इसको फर्स्ट पर्सन में, तो ही सेड दैट ही वुड हेल्प मी, ठीक है, यू को फर्स्ट पर्सन में कर दिया। शी सेड दैट वी विल विजिट लाहौर नेक्स्ट वीक, शी सेड दैट वी, अब वी जो है ये वो कह रही है ना, इसका मतलब वो जो शी है अकेली, उसके साथ कुछ और सहेलियां भी हैं, वो इसलिए वो वी इस्तेमाल कर रही है, तो वी को हम दे से रिप्लेस करेंगे, ठीक है, शी से रिप्लेस नहीं करेंगे, वी को हम दे से रिप्लेस करेंगे। शी सेड दैट दे वुड विजिट लाहौर नेक्स्ट वीक का क्या हो जाएगा, द फॉलोइंग वीक, अगले हफ्ते। नेक्स्ट वीक हमेशा नेक्स्ट को किस में आप करते हैं चेंज, फॉलोइंग में, द फॉलोइंग वीक। अली सेड आई विल नॉट वेस्ट माई टाइम, जी अली सेड दैट, अब आई विल नॉट वेस्ट माई टाइम, दैट ही, अली अपना टाइम वेस्ट नहीं करेगा, तो आई रिप्लेस हो जाएगा ही के साथ, अली की जगह पे यहां पे ही आ जाएगा प्रोनाउन। अली सेड दैट ही वुड नॉट वेस्ट हिज टाइम, माई जो है वो हिज से रिप्लेस हो जाएगा, हिज टाइम। जी द टीचर सेड यू विल सक्सीड, अब टीचर आपको कह रहा है कि आप कामयाब हो जाओगे, द टीचर सेड दैट, अब यू की जगह पे क्या आ जाएगा, आई, will would, I would succeed, the teacher said that I would succeed, they said we will finish the work, they said that they would finish the work, ठीक है, तो ये बन गए आपके। अब चेंज इनटू डायरेक्ट स्पीच, ये इनडायरेक्ट दी हुई है, इसकी डायरेक्ट बनानी है। ही सेड दैट ही वुड हेल्प मी, क्या करेंगे, पहले तो दैट को रिमूव कर देंगे, ही सेड के बाद कॉमा लगा देंगे, फिर इन्वर्टेड कॉमास लगा देंगे, ठीक है, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमास बिगिन, ही वुड हेल्प मी, ही विल हेल्प मी, ही सेड दैट ही विल हेल्प मी, शी सेड दैट दे वुड विजिट लाहौर द फॉलोइंग वीक, ये वही है जो पहले हमने बनाया था, इसको बस इनडायरेक्ट में ले जाएं, सॉरी डायरेक्ट में ले जाएं, ये इनडायरेक्ट इनको डायरेक्ट में लेके जाना है, तो शी सेड कॉमा आगे इन्वर्टेड कॉमास बिगिन, वी विल विजिट लाहौर नेक्स्ट वीक, द फॉलोइंग को नेक्स्ट कर दें। तो इस तरह ये अगला है, अली सेड दैट ही वुड नॉट वेस्ट हिज टाइम, अली सेड कॉमा दैट रिमूव करते हैं, इन्वर्टेड कॉमास बिगिन, ही विल नॉट वेस्ट हिज टाइम, आई विल नॉट, ही को आप आई कर देंगे, यहां भी आई वुड, ही वुड हेल्प मी, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमास बिगिन, आई विल हेल्प यू, आई विल हेल्प यू, और यहां भी ही की जगह पे अली सेड दैट ही वुड नॉट वेस्ट हिज टाइम, अली सेड दैट आई विल नॉट वेस्ट माई टाइम, द टीचर सेड दैट आई वुड सक्सीड, ये वही बात, द टीचर सेड कॉमा दैट रिमूव करें, इन्वर्टेड कॉमा, यू विल सक्सीड, आई को यू से, यू विल सक्सीड, ठीक है, दे सेड दैट दे वुड फिनिश, ये वही हैं जिनको हमने डायरेक्ट में किया था, दे सेड दैट दे वुड फिनिश द वर्क, दे सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमास बिगिन, दैट रिमूव करें, वी विल फिनिश द वर्क। तो ये इसकी आंसर की वो दी हुई इस तरह मैंने, तो जी ये है जी एक एडवांस्ड असेसमेंट टेस्ट जिसमें मुझे देखना है कि कितनी समझ है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की। ये
सबसे पहला जो सेंटेंस है ना, इसको आप भूल जाएं, क्योंकि ये फ्यूचर इंडेफिनिट का नहीं है, ये है फ्यूचर परफेक्ट का टेंस। इसको मैं टच नहीं करता, क्योंकि ये फ्यूचर इंडेफिनिट का टेंस है ही नहीं। अगले पे चलते हैं। लुक एट दोज डार्क क्लाउड्स, लुक एट दोज डार्क क्लाउड्स, आगे है साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। कहते हैं देखो कितने काले बादल हैं, यानी तज्जुब की बात है। साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन तज्जुब जाहिर कर रहे हैं यहाँ, वो कितने काले बादल आ गए, ठीक है, ये वो कहता है। अब आप बताएं, इट डैश रेन हैवीली, इट विल रेन हैवीली, क्या होगा? यहां विल लगेगा, वो पीछे लुक एट दोज डार्क क्लाउड्स, तो क्या लगेगा? फ्यूचर सिर्फ विल से बनता है? नहीं, फ्यूचर के लिए एक और एक्सप्रेशन भी यूज होती है, गोइंग टू। गोइंग टू, यहां पे लगेगा इट इज गोइंग टू रेन हैवीली, बहुत तेज बारिश होने वाली है, फ्यूचर की बात, फ्यूचर इंडेफिनिट की बात। गोइंग टू, ये जहां पे इस तरह की प्रिडिक्शन होगी कि कोई आसार नजर आएंगे, जब आप एक प्री मेडिटेट करते हैं, सोच के कोई बात देख के, कुछ साइंस देख के आप कोई रिजल्ट ड्रा करके फ्यूचर में बताने की कोशिश करते हैं, तो फिर गोइंग टू लगाते हैं, होता वो फ्यूचर इंडेफिनिट ही है। तो यहां पे विल नहीं लगेगा, है फ्यूचर इंडेफिनिट मगर विल नहीं लगेगा, ये होगा इट इज गोइंग टू। इज गोइंग टू, आगे रेन ही आएगा हैवीली, यानी उसका वो प्रेडिक्शन कर रहा है, और प्रेडिक्शन में मोस्टली हम गोइंग टू लगाते हैं। इट इज गोइंग टू रेन हैवीली। आई प्रॉमिस आई नॉट टेल एनीवन अबाउट योर सीक्रेट, मैं वादा करता हूं, आई डैश नॉट टेल एनीवन, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, अबाउट योर सीक्रेट, तुम्हारे राज के बारे में। जी, तो यहां पे क्या लगेगा? शेल लगेगा या विल लगेगा? क्योंकि आई के साथ शेल भी लग सकता है, विल भी लग सकता है, यहां पे विल लगेगा। अगर शेल लगाएंगे तो गलत होगा, यहां पे आई के साथ शेल नहीं लग सकता। वो प्रॉमिस कर रहा है, आई विल नॉट टेल, पक्की बात है कि मैं नहीं बताऊंगा। आई शेल तो जनरल है, आई शेल नॉट गो, मैं नहीं जाऊंगा, एक आम सरसरी बात कर रहे हैं। मगर आप एक प्रॉमिस कर रहे हैं, पक्की बात कर रहे हैं, तो फिर विल लगाना पड़ेगा, ठीक है। आई विल नॉट टेल एनीवन अबाउट योर सीक्रेट। द प्राइम मिनिस्टर डैश विजिट लाहौर टुमारो टू इनॉग्रेट द न्यू प्रोजेक्ट, वजीर आजम एक नए मंसूबे का इफ्तिताह करने के लिए कल लाहौर आएंगे। जी, क्या लगेगा? द प्राइम मिनिस्टर विल विजिट लगेगा, या इज गोइंग टू विजिट लगेगा, या कुछ और लगेगा? ये लगेगा द प्राइम मिनिस्टर विजिट्स, ये भी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। वर्ब की चौथी फॉर्म या पहली फॉर्म भी लगती है, कहां? जहां पे कोई शेड्यूल्ड फिक्स्ड ऑफिशियल टाइम हो, ये एक शेड्यूल ऑलरेडी बना हुआ है प्राइम मिनिस्टर के लाहौर आने का, और ये एक ऑफिशियल विजिट है, और ये फिक्स किया हुआ है पहले से, तो वहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फोर्थ फॉर्म लगती है, तो यहां पे विजिट्स लगेगा, मगर फ्यूचर इंडेफिनिट ही होगा ये, क्योंकि टुमारो हो रहा है, अभी आना है कल उसे। द प्राइम मिनिस्टर विजिट्स लाहौर टुमारो टू इनॉग्रेट द न्यू प्रोजेक्ट, ठीक है। आगे चलें। इफ यू वर्क हार्ड, अगर तुम मेहनत करते हो, यू डैश पास द एग्जाम विद फ्लाइंग कलर्स, आप
अच्छे नंबरों में, इम्तियाजी हैसियत से पास हो जाएंगे, इम्तिहान पास कर लेंगे। ठीक है, तो यहां पे यू विल, यहां पे विल ही आएगा। ठीक है, ये कौन सा वैसे बाय द वे सेंटेंस है? कंडीशनल सेंटेंस है। ठीक है, कंडीशन 1 फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस है। अगर फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस जो पहली क्लास है, अगर वो प्रेजेंट में है और अगली क्लास फ्यूचर इंडेफिनिट में है, पहली प्रेजेंट इंडेफिनिट है, अगली फ्यूचर इंडेफिनिट है, तो फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस होता है। अगर तुम मेहनत करते हो, इफ यू वर्क हार्ड, अगर तुम मेहनत करते हो, यू विल पास द एग्जाम विद फ्लाइंग कलर्स, तो फिर तुम, फ्लाइंग कलर्स क्या होता है? बड़े इम्तियाज के साथ अच्छे नंबरों में आप इम्तिहान पास कर लोगे, तो ये विल आएगा। द कैप्टन डैश डिसाइड द प्लेइंग 11 शॉर्टली, द कैप्टन will decide the playing 11 shortly, यहां पे will ही आएगा। नेक्स्ट ईयर she turn 18 and will be eligible to vote, next year she will turn 18, वो 18 साल की हो जाएगी, and will be eligible to vote, और वोट डालने के अहल होगी। ठीक है, आगे है जी 8 डैश यू डैश हेल्प मी कैरी दीज हैवी बॉक्सेस। अब यहां पे क्वेश्चन मार्क है, तो विल यू हेल्प मी कैरी दीज हैवी बॉक्सेस, क्या आप ये वजनी डब्बे उठाने में मेरी मदद करेंगे? आई डैश अटेंड द सेमिनार इन इस्लामाबाद नेक्स्ट मंथ एज प्लान्ड, एज प्लान्ड ये पहले का प्लान है, ये सेमिनार है, ये ऑफिशियल डेट उसने पहले से दी हुई है। ठीक है, तो क्या आएगा? विल आएगा? नो, आई अटेंड द सेमिनार। ठीक है, विल नहीं आएगा। इन इस्लामाबाद नेक्स्ट मंथ एज प्लान्ड। डू नॉट वरी, परेशान मत हो। द मैकेनिक डैश फिक्स द कार बाय टुमारो आफ्टरनून, बाय टुमारो आफ्टरनून, कल दोपहर मैकेनिक कार को ठीक कर देगा, तो आप परेशान ना। द मैकेनिक विल फिक्स द कार बाय टुमारो आफ्टरनून। तो ये जो फिल इन द ब्लैंक से ये ऊपर जो हमने किए हैं, ये मैंने यहां पे सारे लिख दिए हैं। तो आगे अगला इसका जो पार्ट है वो है जी चेंज इनटू नेगेटिव। द कमेटी विल अनाउंस द रिजल्ट्स दिस आफ्टरनून, ये तो सिंपल है, द कमेटी विल नॉट अनाउंस। आई शैल सबमिट माई असाइनमेंट बिफोर द डेडलाइन, आई शैल नॉट। दे आर गोइंग टू बाय अ न्यू हाउस इन मॉडल टाउन, वो मॉडल टाउन में एक नया घर खरीदने जा रहे हैं, खरीदने लगे हैं, गोइंग टू। ठीक है, तो यहां पे ये फ्यूचर इंडेफिनिट है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस नहीं है। आर गोइंग को देख के प्रेजेंट कंटिन्यूस ना समझ लेना, दिस इज नॉट प्रेजेंट कंटिन्यूस, ये फ्यूचर इंडेफिनिट है, गोइंग टू है यहां पे। दे आर गोइंग टू बाय अ न्यू हाउस इन मॉडल टाउन, वो मॉडल टाउन में नया घर खरीदने लगे हैं, खरीदने जा रहे हैं, अभी खरीदना है फ्यूचर में, तो फ्यूचर इंडेफिनिट। तो दे आर नॉट, आर चूंकि हेल्पिंग वर्ब है, तो रूल क्या है, ये जो हेल्पिंग वर्ब है तकरीबन 21 हेल्पिंग वर्ब है, वो जिस फिक्रे में लगे हुए हैं उन सब के बाद नॉट लगा देंगे तो वो सेंटेंस नेगेटिव बन जाएगा। ठीक है,
चेंज इनटू इंट्रोगेटिव, ये तो इंट्रोगेटिव विल को शुरू में लगा दें, यहां से भी विल को शुरू में लगा दें, यहां से भी विल को शुरू में लगा दें और एंड पे क्वेश्चन मार्क। चेंज इनटू पैसिव वॉइस, यस, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विल अप्रूव द बजट। जी, द बजट विल बी अप्रूव्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ही विल राइट अ comprehensive report on climate change. A comprehensive report on climate change will be written by him. We shall not tolerate any misbehavior in class. Any misbehavior in class will not be tolerated by us. Will she deliver the opening speech tomorrow? क्या वो कल ओपनिंग स्पीच यानी सबसे पहली तकरीर जो होती है वो करेगी? तो इसको हमने क्या क्या करना था? पैसिव वॉइस बनाना था। जी, विल शी डिलीवर द ओपनिंग स्पीच टुमारो? विल द ओपनिंग स्पीच बी डिलीवर्ड बाय हर टुमारो? ठीक है। अच्छा, यहां पे एक पीछे जो हमने इंट्रोगेटिव बनाने थे ना, उसमें एक था द स्कूल विल ऑर्गेनाइज, वी विल टेक द अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट टू कराची। हम कराची की सुबह सवेरे जाने वाली फ्लाइट जो है वो लेंगे, यानी कराची जाने के लिए हम सुबह सवेरे जो फ्लाइट जाती है उस पर जाएंगे। ठीक है, इसका इंट्रोगेटिव बनाएं। विल को स्टार्ट में लगाएंगे तो इंट्रोगेटिव बनेगा विल वी टेक द अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट टू कराची क्वेश्चन मार्क। अगर तो आपने ये बनाया तो ये गलत है। याद रखना, जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस है ना, आई और वी, उनके बाद बेशक विल लगा हुआ हो या शैल लगा हुआ, जब आप क्वेश्चन बनाएंगे तो वो विल स्टार्ट में नहीं लगाएंगे। अगर वी या आई यहां पे है तो फिर विल नहीं लगेगा स्टार्ट में, फिर स्टार्ट में आप शैल लगाएंगे। विल गलत है। शैल वी टेक द अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट कराची, ये शैल आएगा, और आई होता तो फिर भी शैल आना। बाकी सबके साथ वही रूल है कि विल को उठा के स्टार्ट में लगा दें। मगर अगर सब्जेक्ट जो है वो वी या आई है तो फिर हमने वो विल जो है उसको तो रिमूव कर दिया है, मगर यहां पे शैल लगाएंगे। ये इंपॉर्टेंट बात थी जो आपको बतानी थी। ये पैसिव वॉइस हो गए। अच्छा जी, सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन, ये भी वो आंसर की है जो मैंने सेक्शन स्पॉट द एरर्स, इसमें एरर्स आपने देखने हैं। आई विल टू गो टू द मार्केट टुमारो टू बाय सम ग्रोसरीज। आई विल टू गो टू, ये टू गो इन्फिनिटिव है, मगर विल के साथ मैंने कहा था बेयर इन्फिनिटिव लगता है, यानी बेस फॉर्म लगती है। टू गो नहीं, गो लगना है। ये टू गलत लगाया ऐसे, यहां से टू हटा दें, आई विल गो, ये करेक्ट हो जाएगा। शी शैल नॉट कंप्लीटिंग हर, शी शैल नॉट कंप्लीट, वो तो आपको पता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। विल दे मीट्स, नहीं, मीट्स चौथी फॉर्म में पहली लगती है, मीट। वी गोज, नो, वी के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। वी गो टू मरी नेक्स्ट वीक फॉर आवर समर वेकेशन, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। वी गो टू मरी, ये शेड्यूल्ड टाइम है, फिक्स टाइम है, इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है। वी गो टू मरी नेक्स्ट वीक फॉर आवर समर वेकेशन, वैसे वी शैल गो टू मरी नेक्स्ट वीक फॉर आवर समर वेकेशन भी ठीक है, बल्कि वो ज्यादा ठीक है, यानी दोनों ही ठीक है, बट वी शैल गो या वी विल गो लगाएंगे तो ज्यादा बेहतर है। ही विल गिव्स, गिव्स नहीं, ही विल गिव। तो ये था जी आपका यस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। कुछ और एडवांस्ड कंटेक्सचुअल यूजेज, ये थोड़ी सी अंडरस्टैंड करने वाली चीज है। जिन लोगों ने
बहुत बेहतर तरीके से फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को समझना है, उसकी कॉम्प्रीहेंशन वो देखना चाहते हैं तो वो इसको देखें। ये जरा पढ़ें इंस्ट्रक्शन। आंसर द फॉलोइंग ग्रामर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन स्पेसिफिक रूल्स ऑफ द फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। जी पहला क्वेश्चन क्या है? 26 एक्सप्लेन द डिफरेंस इन मीनिंग बिटवीन आई विल बाई अ न्यू कार एंड आई एम गोइंग टू बाई अ न्यू कार। इन दोनों में फर्क बता दी। पहले मिसरे का जो पहला सेंटेंस है उसका मतलब भी यही है कि मैं एक नई कार खरीदूंगा, और दूसरे का मतलब भी यही है कि मैं एक नई कार खरीदूंगा, मगर वो कहता है कि इन दोनों के मतलब में फर्क है। बताएं क्या फर्क है? देखें, आई विल बाई अ न्यू कार, ये उसने बोल दिया है ऐसे ही, उसी वक्त खड़े खड़े एक फैसला कर लिया कि जी मैं एक नई कार खरीदूंगा। ठीक है। ये जो आगे है ना, आई एम गोइंग टू बाई ए न्यू कार, वो ये बता रहा है कि मैं एक नई कार खरीदने जा रहा हूं, यानी कि मैंने पहले प्लान किया है कि मैं एक नई कार खरीद ही लूं। मैंने कुछ पैसे जमा कर लिए हुए हैं और मेरा ख्याल है कि मैं एक नई कार खरीदूंगा। तो ये जो है ये प्री मेडिटेटेड एक उसका डिसीजन है, और ये डिसीजन एट द स्पर ऑफ द मोमेंट है। आई विल बाई अ न्यू कार, ये उसी वक्त उसने फैसला किया है। ये उसने बहुत सोच समझ के, बड़े अरसे से गौर करके फिर उसने डिसाइड किया है कि मैं एक नई कार खरीदने लगा हूं, क्योंकि मुझे अब मैं समझता हूं कि पुरानी खराब हो गई है, जगह जगह रुक जाती है, तो अब मेरा ख्याल है कि मैं नई कार खरीद ही लूं। ठीक है। तो ये फर्क है इन दोनों में। कहते हैं व्हाई डू वी यूज शेल एंड आई? Why do we use shall with I and we in formal grammar? कहता है जो फॉर्मल ग्रामर है, फॉर्मल ग्रामर का मतलब समझते हैं? ये जो मैंने कहा कि एग्रीमेंट्स जब आप लिखते हैं, तहरीर लिखते हैं किसी के साथ, आप कोई समझौता है, आपका कोई एग्रीमेंट है, उसमें आप शैल इस्तेमाल करते हैं, विल नहीं करते। जब लॉ की लैंग्वेज लिखते हैं उसमें शैल इस्तेमाल करते हैं, विल नहीं करते। कहते हैं हम ऐसा क्यों करते हैं? इज इट स्ट्रिक्टली मैंडेटरी इन मॉडर्न इंग्लिश? अच्छा नहीं, ये फॉर्मल ग्रामर यहाँ पे उसका मतलब यह है कि जैसे पुराने ग्रामेरियन कहते थे कि आई और वी के साथ शैल इस्तेमाल करें और बाकियों के साथ विल इस्तेमाल करें। ठीक है। वो कहता है कि नहीं, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। इसका आंसर, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आप आई और वी के साथ शैल इस्तेमाल करें। आप बिल्कुल जिस तरह बाकियों के साथ विल इस्तेमाल करते हैं, आई और वी के साथ भी विल इस्तेमाल करें। इज इट स्ट्रिक्टली मैंडेटरी इन मॉडर्न इंग्लिश? क्या मॉडर्न इंग्लिश में, आजकल की जो इंग्लिश है, उसमें ये लॉ जरूरी है कि आई और वी के साथ शैल इस्तेमाल करें? नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं है। इसमें उन्होंने इसको खत्म कर दिया इस लॉ को। वो कहते हैं जी कि आप आई और वी के साथ भी विल ही इस्तेमाल करें। आइडेंटिफाई द टेंस एंड वॉइस ऑफ दिस सेंटेंस। द मैच विल बी प्लेड टुमारो। ये टेंस तो फ्यूचर इंडेफिनिट है, द मैच विल बी प्लेड टुमारो तो ये पैसिव वॉइस है। कंस्ट्रक्ट अ ग्रामेटिकली करेक्ट कंडीशनल सेंटेंस, फर्स्ट कंडीशनल यूजिंग द फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। जी कहता है आप एक सेंटेंस बनाएं जो कि कंडीशनल सेंटेंस हो, और हो भी वो फर्स्ट कंडीशनल जिसमें फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल हो। वो पहले आप देख चुके हैं। इफ यू वर्क हार्ड, अगर तुम मेहनत करते हो, यू विल पास द एग्जाम, तुम इम्तिहान में पास हो जाओगे। ठीक है। तो जो पहली क्लास है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, और जो अगली क्लास है वो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो यही सेंटेंस वो आपसे बनाने के लिए कह रहा है। रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस in the simple future tense without using the words will or shall। कहता है ये सेंटेंस है, इसको आप सिंपल फ्यूचर टेंस यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में तब्दील करें, मगर उसमें आपने विल और शैल नहीं लगाना, उसके बगैर ही बनाएं, मगर बनाएं फ्यूचर। ही इंटेंड्स टू फिनिश
द टास्क बाय फ्राइडे, उसका इरादा है कि जुमे तक वो काम खत्म कर लेगा। ठीक है, तो क्या लगाएंगे विल और शैल के अलावा की फ्यूचर में? ही इज गोइंग टू फिनिश द टास्क बाय फ्राइडे। इंटेंड्स को आप हटा देंगे, ही इज गोइंग टू फिनिश द टास्क बाय फ्राइडे। ठीक है, वो फ्राइडे तक अपना काम मुकम्मल कर लेगा। तो डियर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर। मैंने इसके सारे आंसर्स भी दिए हुए हैं और ये लेक्चर काफ़ी बड़ा हो गया है, बट आई होप कि आपको इसकी बड़ी अच्छी समझ आ गई होगी। तो थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।